Hello dear student, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMET-5311. So today we will discuss a new chapter which is global warming, which is very important topic in our syllabus. Okay, so let us discuss what is global warming. So there are some introduction for the global warming. What is the global warming, how they affects. Okay, so initially global warming is an increase in the average measured temperature of the earth's near surface air and oceans in the mid 20th century and its projected continuation. ओके, सो बेसिकली द ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है हमारे अर्थ सरफेस में, ठीक है, या किसी प्लेनेट, जब कोई प्लेनेट है या कोई जो अर्थ है, ठीक है, जब कोई प्लेनेट या अर्थ जो है एक उसका जो सरफेस काफ़ी जब हीट कंडीशन पे पहुंच जाता है विच इज़ तब उस कंडीशन पे ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है. ओके, then the global surface temperature increased 0.74 plus minus 0.18 degrees centigrade during the 100-year ending in 2005. ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जो है वो जब टेम्परेचर में 0.74 से 0. प्लस माइनस 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड जब 100 ईयर्स में जो ये इंक्रीज होने का जो ग्राफ है वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है. ओके, सो द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज़ द IPCC concludes most of the observed increase in global average temperatures since the mid 20th century is very likely due to the observed increase in greenhouse gas concentration via an enhanced greenhouse effects. Okay, so the conclusion is comes from the global the intergovernment panel on climate change which is IPCC. उनके द्वारा बताया गया है कि 20th सेंचुरी में जैसे जैसे टेम्परेचर जो है या ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, एनहेंस करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है या अर्थ सरफेस का जो आउटर लेयर है, ठीक है, मीन्स जो लोअर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा हिट होते जा रहा है, वार्म होते जा रहा है, वी कैन से दैट. Then the causes of global warming. Okay, so the emission of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide etc in the atmosphere. Okay, so जो greenhouse है वो अपने से जो गैस emit करती है. Okay, so emission of the greenhouse gases is the carbon dioxide, the methane gas, the nitrous oxides. There are some gases which is emitted by greenhouse. Okay, which is causes the global warming, the depletion of outer layer, the depletion of the atmosphere, the depletion of the ozone layer, we can say that. Then the major source is carbon dioxide is 80%, 20% by methane and nitrous oxides. मतलब मेजर सोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा अर्थ है वो वार्म होते जा रहा है. तो 80% जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का उस गैस का वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड there are some another causes for the which is deforestation, cutting of the plant and cutting and burning of the forest for the purpose of residence and industrial, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एरियाज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहा है, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या है हर एक दिन में क्या हो रहा है, ग्रेजुअली एनहेंस होते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है. ओके, सो ओके, लेट अस सी व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. Okay, so what is the greenhouse effect? So it is a process by which absorption and emission of the infrared radiation by atmospheric gases warm a planet's lower atmosphere and surface. ठीक है, so lower atmosphere है हमारे अर्थ का, उसको क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस जितने भी होते हैं वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन को जिस क्वांटिटी में जिस इंटेंसिटी से
सोलार रेडिएशन क्या हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उतने ही क्वांटिटी में, उतने इंटेंसिटी से इमिट नहीं हो पा रहा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, हम कह सकते हैं वाटर बॉडीज़ की या लैंड ब्रीज की, तो जिसकी वजह से अर्थ सरफेस का जो लोअर मोस्ट जो एरिया है वो क्या है, गर्म होते जा रहा है, विच इज़ कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, so naturally occurring greenhouse gases have a mean warming effect of about 33 degrees centigrade, which is 59 degree Fahrenheit, without which earth would be uninhabitable, ठीक है। तो ग्रीन बेसिकली अगर हमें जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमारा जो अभी जितना टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का, अगर हम 33 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें तो बहुत ही क्या हो जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा इंसान, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम पहुंच जाएंगे, जो हमारे लिए क्या सर्वाइव करने के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर एक हद तक, एक दायरे तक वो हमें ज़रूरी भी है, पर क्या कर रहे हैं, डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर, वी कैन से दैट। And then on the earth the major greenhouse gases are water vapor, which causes about 36 to 70% of the greenhouse effects, not including clouds, ठीक है, जिसमें clouds नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो भी वाटर वेपर जो ग्रीन हाउस गैसेज में जो भी कॉज कर रहे हैं, जिसमें 36 to 75% जिनका हिस्सेदारी है, उसमें क्लाउड नहीं है, बिकॉज क्लाउड इज अ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। So this is not included that particular thing. Okay. Then the carbon dioxide, which is CO2, which causes 9 to 26%, and methane is which is causes 4 to 9% for, and ozone is 3 to 7% for the effect of global warming, or effect of the enhancing global warming, we can say that. The issue is how the strength of the greenhouse effect changes when human activity increases the atmospheric concentration of the some greenhouse gases, ठीक है। तो क्या है कि ग्रीन हाउस की जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, एटमॉस्फेरिक हमारे द्वारा जो भी यूज़ किया जा रहा है, एसी यूज़ किया जा रहा है, व्हीकल्स हम अलग अलग तरीके के यूज़ कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल्स हम जला रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, या फिर जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फॉसिल्स फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, जो CO2 कंसनट्रेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, विच इज़ कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, देन ग्रीन हाउस एमिशन कॉजेज ड्यू टू rapid industrialization, population exploitation, depletion of natural resources and natural phenomena, ठीक है। So rapid industrialization causes a global warming, then the population explosion, जितना ज़्यादा population increase होगा उतनी ज़्यादा क्या होंगे, resources या facilities की हमें क्या होगा, requirement होगा, और हम उस फैसिलिटी का यूज़ करेंगे और नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को हार्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 कंसनट्रेशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। दैन द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स दैट, जैसे जो कोल माइंस हो गया है ना, ऑयल प्रोडक्शन हो गया, डीलिंग हो गया, ये सारे रिसोर्सेज को क्या करते जा रहा है, वो डिस्टर्ब करते जा रहा है, ठीक है। दैन द नेचुरल फिनोमिना, so this image is a very important for understand the global, what is the global warming and how it is affect. So there are sun, okay, यहाँ एक सन है जो वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज़ 240 वाट पर मीटर क्यूब। ओके, सो नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके हमारे अर्थ लेवल तक या अर्थ सरफेस तक पहुंच रहा है। ओके, आफ्टर दैट द सोलर रेडिएशन passes through the clear atmosphere, okay, without pollution, we can say that. So solar radiation is penetrate through the clear atmosphere, which is incoming solar radiation 343 watt per meter square, ठीक है। Then after
some solar radiation is reflected by the atmosphere and earth surface. Okay, so some atmosphere is absorbed by the absorbed by the earth surface, the metallic surface, etc., and some solar radiation is reflected by the atmosphere, which is 103 watt per meter cube. Okay, then this area solar energy is absorbed by the earth surface and warmer is 168 watt per meter square. ओके, सो सोलर रेडिएशन क्या है, एब्जॉर्ब होता है अर्थ सरफेस में और क्या करता है, उसको वार्म करता है. देन आफ्टर द सोलर सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड. ओके, सो सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड एंड री एमिटेड, मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद री एमिट भी करता है. ठीक है, जो पहले हमने सोलर रेडिएशन पेनिट्रेट हुआ उसे उस बॉडी ने एब्जॉर्ब किया. ठीक है, कोई भी प्लैनेट ने एब्जॉर्ब किया या किसी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, वार्म हुआ, फिर जितनी भी रेडिएशन है उतने मात्रा में वो रेडिएशन इमिट भी किया. ठीक है, एट द सेम टाइम by the greenhouse and molecules. The direct effect is warming of the earth's surface and the troposphere. ठीक है, then some of the infrared radiations passes through the atmosphere and it is a loss in space. So net outgoing infrared radiation is about 240 watt per meter square. Okay, then where is this position, surface gains more heat and infrared radiation is emitted again. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है सरफेस, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और री एमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को. ठीक है, तो वो रेडिएशन क्या होता है, 240 वाट, अबाउट 240 वाट. दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा. ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेटा, दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा. Then after, and they're converted into the heat causing the emission of long wave radiation, which is infrared radiation. Okay, so all the long wave radiation is infrared radiation and the short wave radiation is solar radiation. Okay, which is penetrate through the atmosphere and absorbed by the body and re-emitted from the to the atmosphere, we can say that. Okay, so this is all about the global warming and the greenhouse effect. Then the carbon dioxide, what is the effect of carbon dioxide? So the major source of carbon dioxide is the power plants, burning of fossil fuels for the purpose of electricity generation. The about 20% of the carbon dioxide emitted in the atmosphere comes from burning of gasoline in the engines of the vehicles. ठीक है, तो जितने भी जो गैसोलिन है बेसिकली वो पेट्रोल डीजल जो भी हम अपने व्हीकल में यूज़ करते हैं, विच इज़ 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने का काम करता है. ओके, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके, वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट करता है. ठीक है, so this image is a clear picture for understanding global warming. What is the global warming? So there's 1817 में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन था वो कम था. धीरे धीरे वो हर डे बाय डे या साल है ना, साल दर साल वो बढ़ता गया. और देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ती गई. पहले इनिशियली बहुत कम इंडस्ट्रीज़ वगैरह थे, एरोप्लेन्स बहुत ही कम थे. ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन जैसे जो गैस जो है वो एमिट करते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते गया और अब हम पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, विच इज़ 370 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, then the methane is a more than 20 times as effectual as to carbon dioxide at entrapping heat in the atmosphere. Methane is obtained from resources such as rice, paddies, bovine flatulence, bacteria in blocks and fossil fuel manufacture. ठीक है, तो मीथेन 20 टाइम, इट इज़ अ मोर इंटेंसिटी, वी कैन से दैट इट इज़ अ मोर इफेक्टिव 20 times as compared to carbon dioxide for the causing global warming system. Okay, so methane is obtained from resources such as rice paddies. जो rice paddy जो है हम field crop है, which is emitted, which is also the emitted very concentration amount in a methane gas, which is very dangerous for the
for our human beings and animals and natural bodies also. Then the nitrous oxide. So the main sources of nitrous oxide include nylon and nitric acid production, cars with catalytic converters, the use of fertilizers in agriculture and the burning of the organic matter. ठीक है, सो हम जो भी ऑर्गेनिक मैटर बर्न करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ द स्टबर्स, विच इज़ अ पैडी स्ट्रॉ, ठीक है, तो जो भी पैडी स्ट्रॉ लीव्स वगैरह जब हम बर्न करते हैं तो विच इज़ ऑल्सो द इमिटेड ऑफ nitrous oxide. The main sources of nitrous oxide is basically nitric acid production in cars, which is catalytic converters, we can say that, and also the use of fertilizers, which is ammonia, urea. They reproduce the nitrous oxide, we can say that. So आज के लिए बस इतना ही. बेसिकली हमें ग्लोबल वार्मिंग जानना था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हमेशा शॉर्ट नोट्स में ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर देखेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. And thank you for paying attention and listening very carefully. Thank you.